So, good morning, students. Today we will start a new poem number 6, No Man Are Foreign. This poem is written by James Kirkup. So, first of all, we will discuss about the introduction of this poem. The poem insists upon oneness of all men and countries. Our dresses may be different, but the people who wear them are the same. Similarly, different lands or countries are parts of the same earth in which we all shall lie after death. All the people of the world share the same sun, air, or water. They are fed by the same food that is grown during times of peace, but are starved during long wars. All the people labor with their hands as we do. Different people have the same eyes, strength in life. If we hate others, we are harming ourselves. If we fight, we pollute our own earth. Let us remember that all men and countries are the same. So now let's discuss about the summary part of this poem. Let us remember that all people and all countries are one and the same. Our dresses may be different, but we are similar. Our lands means countries, may be different, but the earth is the same. All the people know that they live under the same sun, breathe the same air, and drink the same water. All are fed on the food grown during peace times and starved during long lasting wars. All labor the same way, all have the same eyes and strength. Life is common everywhere. We only harm ourselves when we hate and fight each other. When we fight, we only pollute the earth which is ours and the air which we all breathe. Remember, no man are foreign and no countries strange. तो यहाँ इस कविता में कवि हमें बताना चाहता है कि हमें याद रखना चाहिए कि सभी देशों के लोग तथा सभी देश एक हैं तथा एक समान हैं। हमारी वेशभूषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब एक जैसे हैं। हमारे देश अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पृथ्वी वही है। सभी देशों के लोग ये जानते हैं कि वे एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं, उसी हवा में सांस लेते हैं और एक जैसा पानी पीते हैं। सभी का पोषण शांति काल में उत्पन्न होने वाले भोजन से होता है तथा लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के दौरान सभी लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। सभी लोग समान प्रकार से परिश्रम करते हैं। सभी लोगों की आंखें और शक्ति एक समान होती है। जीवन सभी देशों में अर्थात सभी स्थानों पर एक समान होता है। एक दूसरे से युद्ध लड़कर हम सिर्फ अपने आप को ही हानि पहुंचाते हैं और कवि कहता है कि जब हम युद्ध करते हैं तो केवल हम अपनी ही पृथ्वी को दूषित करते हैं और उसी हवा को प्रदूषित करते हैं जिस हवा में हम सांस लेते हैं। तो याद रखिए, ना कोई विदेशी व्यक्ति है और ना ही कोई देश हमारे लिए अजनबी है। हम सब एक ही पृथ्वी के निवासी हैं। नाउ लेट्स continue with the text part of this poem with explanation. Now see first stanza of the poem. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we shall lie. Here यूनिफॉर्म्स का मतलब है ड्रेसेस ऑफ पीपल और सोल्जर्स, यानी लोगों या सैनिकों की वेशभूषाएं। नाउ सी फर्स्ट लाइन, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंजर। याद रखिए,
कोई भी मनुष्य अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेशी नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रीथ, की वेशभूषाएं अलग हो सकती हैं, बट उसके नीचे जो मनुष्य सांस लेता है वो वैसा ही है जैसे कि हम हैं। लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जो लोग देश भिन्न देश की धरती पर चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, वो वैसी ही पृथ्वी है। इन विच वी ऑल शैल डाई, और हम उसी पृथ्वी पर दफन हो जाएंगे जब हम मर जाएंगे। सो हियर इन दिस स्टैंजा द पोएट वांट्स टू एक्सप्लेन and wants to convey that let us remember that no men are strangers, no countries are foreign, our dresses are different, but under them the man who breathes is the same as we are. The people who walk upon a different land live on the same earth as we and will be buried in the same earth when they die. यानी कवि कहता है कि हमें याद रखना चाहिए कि ना ही हमारे लिए कोई मनुष्य अजनबी है, ना ही कोई देश हमारे लिए पराया है, ना विदेशी है। हमारी वेशभूषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन उसके नीचे जो सांस लेता है वो मनुष्य एक जैसे ही होते हैं। जैसे हम हैं वैसे ही वो लोग हैं। जो लोग अलग देशों में घूमते हैं वे चलते तो उसी पृथ्वी पर है जिस पर हम चलते हैं, और उसी पृथ्वी के भीतर वे दफन होते हैं जब वो मर जाते हैं। वैसे ही हम भी उसी पृथ्वी पर दफन होते हैं जब हम मर जाते हैं। Now see the second stanza of the poem. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests, by war's long winters starved. Harvest means food, grain. Starved means be hungry, यानी भूखे मरना. So here the poet wants to convey they too aware of sun, यानी वे भी सूर्य, एयर यानी हवा, एंड वाटर पानी से अवेयर हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, वे भी शांति काल में उत्पादित भोजन को खाते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और जब युद्ध होता है तो वे सभी लोग भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनके हाथों की लकीरों में भी हम पढ़ सकते हैं ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, ठीक उनके हाथों में भी वही परिश्रम होता है जैसा परिश्रम हम सब लोग करते हैं। सो हियर इन दिस स्टैंजा द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज शेयर द सेम नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सनलाइट, एयर एंड विंटर. They fed themselves with food grown during times of peace and suffer from starvation when there are wars that devastate their fertile lands. They have hands similar to our hands, and in their lines we can read the same manual labor as ours. So this was the complete second stanza. Now we will continue with the third stanza. Now see, in the third stanza, remember they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. So here the poet wants to say that let us remember that we are essentially वन इन बॉडी एंड स्पिरिट. कवि कहता है कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारी भी आंखें हैं, उनकी भी बिल्कुल वैसी आंखें जैसे कि हमारी हैं. दैट वेक और स्लीप, जो जागती हैं और उठती हैं. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, और हमारे पास भी बिल्कुल उनकी जैसी ही ताकत है, जैसी उनकी है ऐसी हमारी है, जिससे हम जीत सकते हैं बाय लव, प्रेम के द्वारा. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर देश में समान जीवन होता है. दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे सभी लोग स्वीकार कर सकते हैं, समझ सकते हैं और हम जान सकते हैं. तो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट लेट अस रिमेंबर दैट वी आर एसेंशियली वन इन बॉडी एंड स्पिरिट.
Though we belong to different countries of the world, the people of every country have the same eyes which are shut during sleep and are opening during wakefulness. Their bodily strength can be won over by anyone who loves, but the same can destroy anyone who hates. Life everywhere is the same. We can recognize and understand that it is true. कवि कहता है कि हमें याद रखना चाहिए कि हम सब शरीर और आत्मा की दृष्टि से आवश्यक रूप से एक ही हैं, हालांकि हम दुनिया के अलग अलग देशों से संबंध रखते हैं। प्रत्येक देश के लोगों की आंखें एक जैसी ही होती है, जो नींद के दौरान बंद होती है और जागते समय खुली रहती है। उन लोगों को शारीरिक शक्ति को उस व्यक्ति द्वारा जीता जा सकता है जो प्रेम कर सकता है, लेकिन वही शक्ति उस व्यक्ति को नष्ट कर सकती है जो नफरत करता है। जीवन सर्वत्र एक जैसा ही है, हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये बात हमारे लिए पूरी तरह से सच है। सो दिस वाज द first part of this poem. The remaining part of this poem we will continue with the next video in the next class. Till then, thank you very much.